Today I'm going to talk about how to nourish your memory. Students, like our body, हमारी memory को भी nourishment की ज़रूरत है. What are the different things that you can include in your diet, in your daily routine so that your memory is enhanced? ये चीज़ें again बहुत ही basic हैं. You might be aware of that, but still, let's go through the session to have a look at what are the different things that nourish our memory. Properly treating your body can increase your ability to process information. अगर आप अपनी बॉडी को properly treat करते हैं then you can increase your ability to process information. Information processing बहुत ही आसान हो जाएगा if we treat our bodies properly. How can we do that? अब हम डिस्कस करेंगे few habits that will improve the memory. कौन सी ऐसी habits हैं जिनको यूज करके you can enhance your memory. First of all, the most important factor that is right food habit. Students, whatever you eat, that directly affects your memory in many ways. So therefore, जो भी आप food intake करते हैं, that should be very good, very refreshing. There are different kinds of foods जिनसे हमारी brain की development बहुत ही अच्छी होती है. Beginning with nuts and seeds. Now, dry fruits, nuts, walnuts, almonds, they are very good for your memory. Apart from this, if we talk about fruit, then students, avocados are best for your memory. Avocado intake आपकी memory को nourish करने में, उसे boost करने में बहुत ही help करता है. Even if we talk about the food that boost our memory, तो उसमें हम सबकी favorite dark chocolate is at the top of the list. अब dark chocolate memory enhancement में कैसे help करती है? Let me explain you that. Students, a dark chocolate basically contains flavonoids. Chocolate के अंदर flavonoids होते हैं. I'm talking about the dark chocolate. And there was a review in 2013. 2013 में एक review किया गया था जिसमें कि ये चीज़ prove होती है कि flavonoids जो हैं वो encourage करते हैं neurons और blood vessels को जो कि memory और learning से related है. So therefore students, including dark chocolate in your diet is very healthy option. Talking about berries are rich in antioxidants, so therefore वो भी हमारे mind को sharpen करने में, nourish करने में, along with nuts, they also help a lot. Even if you talk about coffee, if you are fond of having coffee, then again this is very good for your brain. अगर आप non-vegetarian हैं, then students along with meat and all, if you eat eggs, that is eggs can be enjoyed with breakfast. Eggs are very good for memory nourishment and most important food that plays a very important role. वो कौन सा food है? That is broccoli. So all these options I have given you, whatever you want, you can include in your diet. These are all the correct food habits for enhancing your memory. There are several types of foods that protect your brain, improve how well it works and even build new brain cells. हमारी body में daily thousands of cells go out of the body and new cells are generated. So therefore, brain के cells को revive करने के लिए, rejuvenate करने के लिए, there are certain kinds of foods that I discussed with you. एक healthy body के लिए exercising is very important. Similarly, एक healthy brain, healthy memory के लिए regular exercise plays a very pivotal role. जब भी हम exercise करते हैं students, the oxygen levels in your brain increases. Means exercising के साथ brain में जो oxygen है that also increases, which is really beneficial in order to nourish your brain. Brain को nourish करने में oxygen is very helpful और उसके levels increase होते हैं while you are exercising. Students, exercise से ना ही सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं such as diabetes, cardiovascular diseases, but memory के related जो disorders होते हैं, for example किसी को memory loss की problem होती है, दे पीपल आर अनेबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, कहते हैं उसकी मेमोरी बहुत ही वीक है. ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती हैं इफ़ यू इंक्लूड एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट दैट एक्सरसाइज जो है हमारे ब्रेन के एफर्ट्स को इंक्रीज करती है. जो ब्रेन के केमिकल्स हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल है एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन सेल्स. सो एक्सरसाइज का आई हैव टोल्ड यू इट्स अ मेजर बेनिफिट इन एनहांसिंग योर मेमोरी. एक्सरसाइज के साथ साथ इफ़ यू कैन डेवलप द हैबिट ऑफ मेडिटेशन, this will be really very helpful. Meditate करना in the beginning seems very difficult. To concentrate on something is again difficult. Mind flicker करता है. But if you develop the habit of meditating, that too from let's say from 10 minutes increasing to 20 minutes, 25 minutes,
दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइव योर ब्रेन. आप जितने भी फटीग में हो, जितने भी स्ट्रेस्ड आउट हो, इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, you are having anxiety, you're not feeling good, if you make a habit to meditate, all these things will actually go away from you. एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन एक सप्लीमेंट की तरह एक्ट करता है फॉर नरिशिंग योर ब्रेन. रेगुलर मेडिटेशन चेंजेस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन इन पावरफुल वेज, इंक्लूडिंग द वेज दैट हेल्प इन एनहांसिंग मेमोरी. जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिटेशन along with exercise, they are the best for your brain nourishment. मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल वे है आपकी मेमोरी को इन्हांस करने के लिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैनॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम भूल नहीं सकते, दैट इज साउंड स्लीप. सोना, और आई वुड से एडिक्वेट सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग स्लीप्स फॉर 7 to 8 hours. तो स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए. When you sleep, you should sleep in a very comfortable position. 7 to 8 hours की ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए for its adequate functioning. मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी. अगर आप अपनी मेमोरी को स्टेबल करना चाहते हैं, you want to consolidate it, then students adequate sleep is very important. क्योंकि स्लीपलेसनेस के साथ बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं that you can even see in the early ages. आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे टीनेजर्स हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, मीन्स ईदर दे आर ऑक्यूपाइड ऑन फोन्स, लैपटॉप्स, प्लेइंग गेम्स. तो जो स्लीप डिस्टर्ब होती है, दैट गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस दैट आर क्योरेबल इन अ वेरी लॉन्ग टेन्योर, जिन्हें के क्योर करने में बहुत टाइम लगता है. सो वाई टू इन्वॉल्व इन सच थिंग्स. वो आपके ओवरऑल फिजिकल बॉडी के लिए भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, as well as to your brain also. Therefore students, sound sleep is very important. जैसे कि मैंने अभी बताया, उसमें से एक डिजीज है इंसोमेनिया. इंसोमेनिया जिस पर्सन को होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती थ्रू आउट द डे. दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट, दैट चाइल्ड लैक्स कॉन्सेंट्रेशन. बहुत ही टायर्ड फील करते हो आप सारा दिन, यू आर इन फटीग, स्ट्रेस्ड आउट. सो ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस एंटर इन योर बॉडी और इन योर माइंड अगर आप स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो. सो देयरफॉर एडिक्वेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रख के आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं और उसे प्रॉपरली नरिश कर सकते हैं. फर्स्ट इन द रो इज गेट योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड. लाइफ का, आपके स्केड्यूल का ऑर्गेनाइज्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स, इवन इफ यू आर गोइंग टू स्कूल या आप कॉलेज जा रहे हैं, even if you are working, this point is for everybody. All of you should organize yourself. अब खुद को organize करने के लिए सबसे पहले you can just keep the things at place. Moreover, next day आपको कौन से टास्क करने हैं. Don't say कि मुझे अगले दिन स्कूल जाना है, वापस आके होमवर्क करना है. Why to write that? Why to make a plan of that? It is really very important. अगर आप इसी स्टेज से स्टार्ट करेंगे to write down the things, to make an इवेंट प्लान, फ्रॉम इवेंट प्लान आई मीन नेक्स्ट डे का क्या शेड्यूल है आपका. अगर आप स्कूल भी जा रहे हैं, हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गेट अप एट लेट्स से 6 AM और 7 AM, देन you just get ready for your school, you have your breakfast, then at what time school bus comes, then what time you come back, then you rest for some time, then you play for some time, study, what is your sleeping time, how long you watch television. All these things need to be organized. ये हैबिट अगर राइट फ्रॉम चाइल्डहुड डेवलप होगी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इवन इन योर हायर स्टडीज एज वेल एज जब आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करेंगे. एंड लिस्ट अ लिस्ट, जिसे हम कहते हैं टू डू लिस्ट. ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीनेजर्स इसे इग्नोर कर देते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, डे के शेड्यूलिंग के साथ साथ योर, लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट, तो आपका स्टडी का भी देयर शुड बी अ पैटर्न, देयर शुड बी अ टू डू लिस्ट. व्हाट टू स्टडी, विच डे टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी, ये सारी टू डू लिस्ट का पार्ट है. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ यू. इन द एज जब हम स्कूल्स में होते हैं, सो आर टू डू लिस्ट अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग आवर डे कैन बी कि आपको स्टडी में कौन सा टॉपिक किस दिन करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर तक पढ़ना है, हाउ मच टाइम टू डिवोट. All these things are very important. Keep a calendar handy to keep track of important dates.
हैंडी कैलेंडर्स मिल जाते हैं आजकल दैट आर वेरी स्मॉल इन साइज. आप उसे अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं. यू कैन मार्क और नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट डेट्स. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैव अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड पुट एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है. दैट मे साउंड मोनोटोनस दैट एवरी डे मैं ये क्यों करूँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी बुक से लेके आपके पेन्स, आपके नोटबुक्स, योर पेन स्टैंड, योर बुक शेल्फ, योर यूनिफॉर्म, द ड्रेस यू वेयर, द शूज यू वेयर, आपके रिलेटेड हर चीज़ के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस. और हर एक चीज़ को आफ्टर यूज यू शुड मेक अ हैबिट कि आप उसे उसकी जगह पर रखें. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. दिस इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, और या फिर आप ये कहें दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर. नो, आपकी ये हैबिट होनी चाहिए टू कीप एवरीथिंग एट इट्स प्लेस. स्टूडेंट्स, ब्रेन भी बहुत नीट एंड क्लीन फील करेगा, आपका माइंड बहुत ही रिफ्रेश्ड रहेगा, बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग यू आर सेंडिंग सिग्नल टू योर ब्रेन. अगर आप पेन यूज कर रहे हैं फ्रॉम द पेन स्टैंड, आफ्टर यूज यू आर जस्ट मेकिंग अ क्लटर. यू आर थ्रोइंग पेन्स हेयर एंड देयर, कहीं पर भी रख दिया एंड यू डोंट रिमेंबर. उसके बाद यू आर एवरी टाइम सर्चिंग फॉर योर थिंग्स. ये सब चीज़ें एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं ऑन योर ब्रेन. ये चीज़ें दिखने में बहुत ही सिली लगती हैं, बट व्हेन दिस बिकम्स अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ क्लटर, अनऑर्गेनाइज्ड रखना हर चीज़ को, दिस टेंड्स टू लोअर डाउन योर ब्रेन्स वर्किंग. आप जितना मर्जी चीज़ों को लर्न करने के लिए कोशिश करें, बट स्टिल यू विल बी एट फेलियर. वाई सो? बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन अबाउट क्लटर, मेस, अनऑर्गेनाइज्ड वे. सो देयरफॉर इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? वेरी सिंपल, चेंज इन योर लाइफस्टाइल. हर एक चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और उस चीज़ को आफ्टर यूज यू शुड कीप एट दैट प्लेस. This point is majorly for the adult people. Keep a tote bag or backpack right by the front door. There are situations जब आप घर से निकल रहे हो, then you come to know you need a bag or something. So therefore one tote bag or a backpack should be always at the main front door or near to that. Focus on one thing at a time. No doubt हमारा brain multitasking है. नोइंगली एंड अननोइंगली या फिर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी. आपके आसपास अगर कोई शोर है, यू आर हेयरिंग टू दैट. ये मेरी अजम्पशन है दैट यू आर अटेंटिवली लिसनिंग टू मी. मुझे सुनते सुनते यू आर ऑल्सो हेयरिंग इन केस देयर इज सर्टन नॉइज. पीछे आपके कोई नॉइज है, कार पास हो रही है कोई, और वॉट एवर. लिसनिंग टू मी, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द स्क्रीन. स्क्रीन पे देखते हुए यू आर ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन डिफरेंट थिंग्स. आपके रूम में कोई आया या फिर किसी चीज़ की तरफ आप देख रहे हो. नो डाउट आवर ब्रेन इज मल्टी फंक्शनिंग, बट जब भी आप कोई टास्क कर रहे हैं विद एन एक्टिव माइंड, ये बाय डिफॉल्ट फिनोमिनास थे स्टूडेंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. ये बॉडी को अपने आप पता है व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, बट व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन सर्टन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सर्टन काइंड ऑफ टास्क, या इवन आप अपनी एकेडमिक्स का कोई सब्जेक्ट ही स्टडी कर रहे हैं, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम. कोई भी दो कामों को आप पैरेलली बिल्कुल ना करें. रादर देन एंडिंग अप इन नथिंग, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ऑलवेज कीप अ फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम. मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द विजुअल क्यूज. व्हाट आर द विजुअल क्यूज? विजुअल मीन्स वो चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं. सो आप विजुअल कार्ड्स या फिर विजुअल क्यूज बना सकते हैं इफ यू हैव टाइम and you develop interest in making such things. Keep important numbers at a single place. Being a child, being a student, it is always there. आजकल सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, या जिनके पास नहीं है फोन्स, for all those students as well as all the students जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, important numbers still should be written with you at a single place. There may be situation कि आपके पास कोई भी सोर्स ना हो to call somebody if you are in some problem. आपको किसी तरह की अर्जेंसी है, कोई हेल्प चाहिए, देन यू मे नॉट फाइंड द नंबर्स क्योंकि आपको याद नहीं है. देयरफॉर इट इज बेटर टू राइट द नंबर्स एट अ सिंगल प्लेस. राइट द थिंग्स डाउन एज दे अकर. जैसे जैसे आपने प्लान किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्लान को जब भी आप टैली करें दैट व्हाट यू हैव डन, व्हाट आर द पेंडिंग थिंग्स, तो राइट डाउन द थिंग्स जो जो आपने कर ली हैं, कौन सी पेंडिंग है. इसमें टू डू लिस्ट और शेड्यूल भी इंक्लूडेड होते हैं. अगेन रिपीटिंग स्टूडेंट्स, अगर आप राइट फ्रॉम योर अर्ली एज ये हैबिट डेवलप कर लेंगे,
आपके फर्दर स्टडीज में एज वेल एज प्रोफेशनल करियर में दीज विल बी रियली हेल्पफुल. रिटर्न फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स टू द सेम स्पॉट ईच टाइम. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी स्क्रीन के ऊपर आई हैव डिस्प्लेड अ बुक शेल्फ. अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग ब्यूटिफुल. लेकिन अगर इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इट इज ऑल क्लटर, बुक्स आर स्कैटरिंग हियर एंड देयर, तो वो एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देगा. देयर विल बी नेगेटिविटी एट दैट प्लेस एंड योर ब्रेन कैन नॉट डू समथिंग वेरी प्रोडक्टिव. लास्टली, जब ये सारी चीजें आप करते हो, कीप ऑन रिपीटिंग वॉट एवर थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू. ये आपको एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना नहीं करनी है, बल्कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. रिपीट योर सेल्फ. Last but not the least, a positive attitude is always required. Ups and downs are a part of life. Sometimes there are happy times और कोई time ऐसा भी होता है when it is sad or you can say you are not happy. But positive attitude is something that can lead you through that. Therefore, students, keep your attitude positive. ये minor changes करके you will definitely see a good improvement in your memory as well as your lifestyle. See you in the next class.